परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और लोगों के जीवन भी बदले। परमेश्वर उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, ताकि वचन का बीज जो भी आ रहा है वो एक अच्छे ज़मीन पे गिरे प्रभु और काफ़ी फलवंत हो प्रभु। परमेश्वर ये वचन उनके जीवन को बदले प्रभु। मेरे मुख के ऊपर परमेश्वर तू ताला लगा प्रभु, मेरे जीभ के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण ले प्रभु। मैं नहीं पर तू मेरे द्वारा बात कर प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा तू बात कर प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुझ से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि मूसा और हारून जो है वो फ़ारो राजा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तू हमारे लोगों को छोड़ दे, पर वो छोड़ता नहीं है और इसलिए वो क्या करते हैं, राख लेते हैं और उड़ाते हैं और उससे क्या होता है, बॉयल्स आने लगते हैं, राइट। पूरे बदन पे, शरीर पे फोड़ियाँ आने लगती है एंड उसके वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। जानवरों के ऊपर फोड़ियाँ, मनुष्य के ऊपर फोड़ियाँ। और ये सिर्फ मिस्र देश में होता है। इज़राइल मिस्र देश में जो गोशेन जो भाग है वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे इजरायली लोग रहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों की कैसे केयर करता है। ओके, परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बारे में सोचता है। आज का जो वचन है, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम निर्गम 9:13 से 35 हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर मैं मराठी में, और फिर हम जाएंगे हिंदी में। Then the Lord, Exodus 9:13-35, then the Lord said to Moses, get up early in the morning, confront Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews says, let my people go so that they may worship me, or this time I will send the full force of my plagues against you and against your officials and your people, so you may know that there is no one like me in all the earth. For by now I could have stretched out my hand and struck you and your people with plague that would have wiped you off the earth. But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. You still set yourself against my people and will not let them go. Therefore at this time tomorrow I will send the worst hailstorm that has ever fallen on Egypt from the day it has founded till now. Give an order now to bring your livestock and everything you have in the field to a place of shelter, because the hail will fall on every person and animal that has not been brought in and is still out in the field, and they will die. Those officials of Pharaoh who feared the word of the Lord hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored the word of the Lord left their slaves and livestock in the field. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards the sky so that hail will fall all over Egypt, on people and animals, and on everything growing in the fields of Egypt. When Moses stretched out his staff towards the sky, the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Hail fell and lightning flashed back and forth. It was the storm in all the land of Egypt since it had become a nation. It was the worst storm in all the land of the Egypt since it had become a nation. Throughout the Egypt, hail struck everything in the fields, both people and animals. It beat down everything growing in the fields and stripped every tree. The only place it did not hail was the land of Goshen, where the Israelites were. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron. This time I have sinned, he said to them. The Lord is in the right, and I and my people are in the wrong. Pray to the Lord, for we have had enough thunder and hail. I will let you go. You don't have to stay any longer.
Moses replied, when I have gone out of the city, I will spread out my hands in prayer to the Lord. The thunder will stop and there will be no more hail, so you may know that the earth is the Lord's. But I know that you and your officials still do not fear the Lord God. The flax and barley were destroyed since the barley had headed and the flax was in bloom. The wheat and spelt, however, were not destroyed because they ripened later. Then Moses left Pharaoh and went out of the city. He spread out his hands towards the Lord. The thunder and hail stopped, and the rain no longer poured down on the land. When Pharaoh saw that the rain and hail and thunder had stopped, he sinned again. He and his officials hardened their hearts. So Pharaoh's heart was hard, and he would not let the Israelites go, just as the Lord had said through Moses. ओके, कीर्ती मराठीमध्ये वाच. मराठी. हम्म. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, पहाटेच उठून फारो पुढे उभा राहा आणि त्याला सांग, इब्राचा देव परमेश्वर असे म्हणतो की माझ्या लोकांनी माझी उपासना करावी म्हणून त्यात जाऊ दे, नाहीतर ह्या खेपेस मी सर्व प्रकारच्या पीडा तुझ्या हृदयावर, तुझ्या सेवकावर व तुझ्या प्रजेवर पाठवतो, म्हणजे अखिल पृथ्वीवर माझ्यासारखा अन्य कोणी नाही हे तुला यावरून कळेल. मी आपला हात उगारून तुझ्यावर, तुझ्या प्रजेवर मरीचा प्रहार केला असता आणि पृथ्वीवरून तुझा उच्छेद झाला असता. तथापि मी तुला आपले सामर्थ्य दाखवावे आणि माझे नाम साऱ्या पृथ्वीवर विख्यात व्हावे, यासाठीच मी तुला राखली आहे. तू अद्यापि माझ्या लोकांशी चढेलपणाने वर्तवून त्यास जाऊ देत नाहीस का? पहा, उद्या यावेळेस मी गाराची अशी भयंकर वृष्टी करीन की मिस्री राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून आजवर तशी वृष्टी झाली नाही. तर आता माणसे पाठवून रानातून तुझी गुरे व दुसरे जे काही रानात असेल ते आण. जी माणसे व पशु घरी आडोशास न आणल्यामुळे रानात सापडतील, त्याचवर गाराची झोड पडून ती मरतील. फारोच्या सेवकापैकी ज्यास परमेश्वराच्या सांगण्याची भीती वाटली त्यांनी आपले दास व गुरे पळवून घरी आणले, आणि ज्यांनी परमेश्वराच्या सांगण्याची पर्वा केली नाही त्यांनी आपले दास व गुरे रानात राहून दिली. मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू आपला हात आकाशाकडे उभार, म्हणजे सर्व मिस्र देशावर गाराची वृष्टी होईल. मिस्र देशातील मनुष्यावर व पशुवर व शेतातील हर एक वनस्पतीवरती होईल. मोशेने आपली काठी आकाशाकडे उभारली, तेव्हा परमेश्वराने मेघ गर्जना व गाराची वृष्टी केली आणि अग्नीचा लोळ जमिनीपर्यंत येऊ लागला. या प्रकारे परमेश्वराने मिस्र देशावर गाराचा वर्षाव केला. याप्रमाणे गारा पडत असता मधून मधून अग्नीचा लोळ दिसत होता. ही गारांची वृष्टी एवढी भारी होती की मिस्री राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून त्यात कोठेही तशी कधी झाली नव्हती. सर्व मिस्र देशात मनुष्य, गुरे ढोरे वगैरे जे काय वनात होते त्या सर्वांवर गारांचा मारा झाला. शेतातील सर्व वनस्पतीवर मारा झाला आणि वनातील सर्व वृक्ष मोडून गेले. मात्र गोशेन प्रांतात इस्रायल लोक राहत होते, तेथे मुळीच गारा पडल्या नाही. तेव्हा परमेश्वराने मोशे व अहरोन यास बोलावून आणून म्हटले, मी या खेपेस पाप केले आहे. परमेश्वर न्यायी आहे आणि मी व माझी प्रजा अपराधी आहोत. तुम्ही परमेश्वराची विनवणी करा की प्रचंड गर्जना व गाराची वृष्टी झाली आहे तेवढी पुरे. मी तुम्हाला जाऊन देतो, तुम्हाला इथपर्यंत राहायलाच नको. मोशे त्यास म्हणाला, मी नगराबाहेर गेलो की परमेश्वराकडे आपले हात पसरीन, तेव्हा मेघ गर्जना बंद होईल व गारा पडवायच्या नाहीत. यावरून तुला कळेल की पृथ्वी परमेश्वराची आहे. तथापि हे मला ठाऊक आहे की अजूनही तू आणि तुझे सर्व सेवक परमेश्वर देव याला भीत नाहीत. त्या समय जवस व सातू यांचा नाश झाला, का की सातू निसवले होते आणि जवसाला बोंडे आली होती. पण गहू व काठ्या गहू यांचा नाश झाला नाही, कारण ते अद्याप फारसे वाढले नव्हते. मोशे फारो जवळून निघून नगराबाहेर गेला आणि परमेश्वराकडे त्याने आपले हात पसरले. तेव्हा मेघ गर्जना व गारा बंद झाल्या व पृथ्वीवर पर्जन्यवृष्टी होण्याची थांबली. पाऊस, गारा व गर्जने बंद झाली. असे पाहून फारोने व त्याच्या सेवकाने आपले मन कठीण करून पुन्हा पाप केले. फारोचे मन कठीण झाले व त्याने इस्रायल लोक जाऊ दिले नाही. परमेश्वराने मोशेच्या द्वारे असे सांगितलेच होते. देखो अब हम एक एक ये स्टोरी क्या है देखेंगे. मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, स्टोरी भी देखेंगे और फिर वचन में जाएंगे. ठीक है. अभी जो हमने पढ़ा वो मराठी में निर्गम 9
9वां अध्याय 13 से 35वां था, ठीक है। अब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं निर्गमन 9 13 से 35, और हम स्टोरी देखेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ठीक है। अब जो था वो, अब जो परमेश्वर न्याय ला रहा था वो ओलो का न्याय था। ओले, ओले मतलब हेल, वो गारांची पीड़ा। कभी कभी हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, बट पूना में और कश्मीर में स्नो गिरता है, ओके। ये स्नो नहीं था, ये हेल था, और भी कड़क होता है वो, तो वो गिरता है, तो ठीक है। तो वो हम देखेंगे अब। ओले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठ और फिरौन के पास जाओ, उससे कहो कि हिब्रू लोगों को परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों की मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अधिकारियों और तुम्हारे लोगों के विरुद्ध पूरी शक्ति का प्रयोग करूंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मूसा से और हारून से कि सवेरे उठ के किससे मिलने जा, फैरो से, और उसको बोल मेरे लोगों को जाने दे, वरना इसके बाद के जो जजमेंट होंगे, जो न्याय होगा, वो इतना सीवियर होगा, इतना गंभीर होगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। देखो, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठो और फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारियों और तुम्हारे वापस मैं बोल रही हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठो और फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है, हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरे लोगों को मेरी उपासना के लिए जाने दो। यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारियों और तुम्हारे लोगों के विरुद्ध पूरी शक्ति का प्रयोग करूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि अगर अब तूने मेरे लोगों को जाने नहीं दिया तो अभी तक मैंने मेरे शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं किया था, अब मैं मेरे शक्ति का पूरा प्रयोग करूंगा। आमेन। मैं अपनी पूरी शक्ति तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, ठीक है। तब तुम जानोगे कि मेरे समान दुनिया में अन्य कोई परमेश्वर नहीं है। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ तथा मैं ऐसी बीमारी फैला सकता हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को धरती से समाप्त कर देगी, किंतु मैंने तुम्हें यह किसी कारणवश रखा है। देखो, परमेश्वर कहता है कि पहले के जो न्याय थे ना, वो सिर्फ तुम्हें जो नील नदी को खून में बदलना, या जुए आना, या मेंढक आना, या बाकी के बॉयल्स आना, या लाइफ स्टॉक मरना है, मतलब जो पशु मरना, ये सारे जो न्याय थे वो न्याय तुम्हें सिर्फ बदलाव लाने के लिए थे कि तुम जल्द से जल्द बदलो, पर तुम्हें इतना टाइम देने के बाद भी तुम बदले नहीं हो। तो अब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इस कारण रखा है ताकि तुम्हारे द्वारा मैं अपनी महिमा दिखा सकूं, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ किसी कारणवश रखा है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है कि तुम मेरी शक्ति को देख सको, तब सारे संसार के लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। तब तुम अब भी मेरे लोगों के विरुद्ध हो, तुम उन्हें स्वतंत्र पूर्वक नहीं जाने दे रहे हो। इसलिए कल मैं ऐसे समय भयंकर ओला बारिश उत्पन्न करूंगा। जब से मिस्र राष्ट्र बना तब से मिस्र में ऐसा ओला बारिश पहले कभी नहीं आई होगी। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तू अभी तक मैंने तुझे कहा है जाने दे, पर तू इनको जाने नहीं दे रहा है, पर अब मैं ऐसा न्याय लाने वाली हूँ कि तुम्हारे ऊपर, मिस्र देश के लोगों के ऊपर ओले बरसने वाले हैं। और ओले छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े स्नो, ओके, बड़े बड़े ओलों की बारिश होने वाली है। एक ओला डैमेज कर सकता है, पता है आपको? इतना एक ओला अगर जोरों से गिरेगा तो घर डैमेज हो सकते हैं, बाहर कोई रहेगा तो। मतलब इतना आसान नहीं है ओलों के बीच में रहने के लिए। लगते हैं वो ओले जब गिरते, तो समझ में आ रहा है? जैसे बर्फ है, आप भी बर्फ समझो, बर्फ कितना ये है ना, वैसे जब वो ओले गिरते हैं ना तो वो लगते हैं, समझो। अब इससे कल मैं ऐसी समय भयंकर
भयंकर ओला बारिश उत्पन्न करूंगा। जब से मिस्र राष्ट्र बना तब से मिस्र में ऐसी ओला बारिश पहले कभी नहीं आई होगी। अंततः अपने जानवरों को सुरक्षित जगह में रखना। जो कुछ तुम्हारे खेतों में हो उसे सुरक्षित स्थानों में अवश्य रख लेना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या जानवर जो मैदान में होगा मारा जाएगा। जो कुछ तुम्हारे घरों के भीतर नहीं रखा होगा उस सब पर ओले गिरेंगे। देखो परमेश्वर, देखो उस न्याय ला रहा है, पर न्याय के बीच में परमेश्वर दया भी दिखा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कल मैं ओले बरसाऊंगा, पर तुम्हारे लोग और किन के ऊपर ओले गिरेंगे? ओले गिरेंगे जो भी घर के बाहर कुछ भी होगा उसके ऊपर ओले गिरेंगे। तो तुम्हारे अगर जानवर बाहर होंगे तो जानवर के ऊपर ओले गिरेंगे, मनुष्य बाहर होंगे तो मनुष्य के ऊपर ओले गिरेंगे। देखो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा था, उसमें भी उसे पता था कि कल मैं ये न्याय लाने वाला हूँ, कल इनका होने वाला है न्याय, पर फिर भी परमेश्वर एक दया दिखा रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मनुष्य बच जाए, तुम्हारे जानवर बच जाए, तो तुम अंदर लेकर आओ। परमेश्वर अगर चाहता तो एक ही झटके में पूरे मिस्र देश को उड़ा सकता था महामारी के द्वारा, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। बार बार चांस दिया, पर कुछ लोगों को बार बार चांस देके भी अक्ल नहीं आती है। फिरौन ने कुछ अधिकारियों ने यहोवा के संदेश पर ध्यान दिया। उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जानवरों और दासों को घर में कर लिया। देखो क्या किया, फिरौन के कुछ जो अधिकारी थे वो जानते थे कि भाई जब मूसा और हारून कुछ बोलते हैं तो वो वैसा ही होगा। उन्होंने क्या किया, फटाफट जाके अपने जानवरों को और अपने लोगों को जो उनके सेवक थे उनको अपने घर में लेकर आए। किंतु अन्य लोगों ने यहोवा के संदेश की उपेक्षा की। मतलब कुछ लोगों ने इस परमेश्वर की बात को हल्के से ले लिया। उन लोगों के वे दास और जानवर नष्ट हो गए तो बाहर मैदानों में थे। समझ में आ रहा है? कुछ फ़ारो राजा के जो दास थे उनको पता चला, ऑफिशियल्स जो थे फ़ारो के नीचे काम करने वाले, उनको पता चला कि भाई अपने को अक्कल लड़ानी है। अगर परमेश्वर बोल रहा है अंदर लेकर आओ, वो अंदर लेकर आए। उनके दास भी बच गए, जानवर भी बच गए। पर कुछ लोग अपने ही इसमें थे, उनको लगा ऐसा कुछ होगा नहीं। उन्होंने अपने ही सेवकों को बाहर छोड़ा काम करने के लिए। खेतों में काम कर रहे होंगे वो, कई काम छोड़ा, जानवर भी मर गए और वो दास भी मर गए। अब देखो यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी भुजाएं हवा में उठाओ और मिस्र पर ओले गिरने आरंभ हो जाएंगे। ओले पूरे मिस्र के सभी खेतों में लोगों, जानवरों और पेड़ पौधे पर गिरेंगे। देखो परमेश्वर ने कहा मूसा को कि अब तो अपने हाथ फैला और अब ओले गिरना शुरू हो जाएंगे। ओले कहाँ कहाँ गिरेंगे? खेतों में, लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर, सारा कुछ नष्ट कर देंगे। अतः मूसा ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और यहोवा ने गर्जन और बिजलियां भेजी। देखो वहां पे सिर्फ ओले नहीं गिर रहे थे, ओलों के साथ ओले तो गिर रहे थे। ओले कब आता है? जब जोर से बारिश आती है। तो बारिश तो हो रही थी पर लाइटनिंग भी हो रही थी, मतलब वीज कड़कड़त होती, वीजा खाली ये तो क्या, ओके, बिजली नीचे आ रही थी। अब देखो, तथा जमीन पर ओले बरसाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और यहोवा ने गर्जन और बिजलियां भेजी तथा जमीन पर ओले बरसाए। ओले पूरे मिस्र पर पड़े। कहाँ पड़े? इजिप्ट। ओले पड़ रहे थे और ओलों के साथ बिजली चमक रही थी। जब से मिस्र राष्ट्र बना था तब से मिस्र को हानि पहुंचाने वाले ओले वृष्टि में यह सबसे भयंकर थे। मतलब जब से मिस्र राष्ट्र बना था, मिस्र देश बना था, तब से ऐसा कभी आंधी तूफान नहीं आया था जितना ये आंधी तूफान आ रहा था। और यहाँ पे एक दो बात खास हो रही थी, यहाँ पे ओले भी गिर रहे थे और यहाँ पे आग भी गिर रही थी। लाइटनिंग के वजह से जो नीचे ये आ रहा था उसकी वजह से आग भी उत्पन्न हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग समझते हो ना आप? वीजा कड़कड़त होता। तो वीज, जब बिजली नीचे गिरती है तो क्या होता है वहां पे? वो जला के खाक कर देती है सब कुछ, ठीक है। ओलों ने आंधी ने मिस्र के खेतों में, एक मिनट,
ओले पड़ रहे थे और ओलों के साथ बिजली चमक रही थी। जब से मिस्र राष्ट्र बना था तब से मिस्र को हानि पहुंचाने वाले ओले वृष्टि में यह सबसे भयंकर थे। आंधी ने मिस्र के खेतों में जो कुछ था उसे नष्ट कर दिया। ओलों ने आदमी, जानवरों और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। ओलों ने खेतों में सारे पेड़ों को भी तोड़ दिया। गोशेन प्रदेश ही जहाँ इज़राइल के लोग रहते थे, ऐसे ही जगह थी जहाँ ओले नहीं पड़े। अब क्या हुआ, सब जगह पे ओले पड़ रहे थे। गोशेन जो था, जहाँ पे इज़राइली लोग रह रहे थे, वहाँ पे ओले नहीं गिरे। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा सच्चा है और मैं तथा मेरे लोग दुष्ट हैं। ओले और परमेश्वर की गरजते आवाज़ें अत्यधिक। देखो, मैंने एक चीज़ आपको बोली नहीं। जब ओले गिरने लगे तो वो जानवरों के ऊपर गिरने लगे, पेड़ पौधे के ऊपर गिरने लगे, और उनकी जो सारी फसल थी वो भी नष्ट हो रही थी, जल के खाक हो रही थी उनकी फसल। गोशेन प्रदेश ही जहाँ इज़राइल के लोग रहते थे, ऐसी जगह थी जहाँ ओले नहीं पड़े। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा सच्चा है और मैं तथा मेरे लोग दुष्ट हैं। ओले और परमेश्वर की गरजती आवाज़ें अत्यधिक है। परमेश्वर से तूफान को रोकने को कहो। मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, तुम लोगों को यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। मूसा ने फिरौन से कहा, जब मैं नगर को छोड़ूंगा तब मैं प्रार्थना में अपनी भुजाओं को यहोवा के सामने उठाऊंगा और गर्जन तथा ओले रुक जाएंगे। मूसा ने कहा कि बाबा, हमने गलती की है, मेरे लोगों ने भी गलती की है, और अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये ओले गिरना बंद हो जाए। ठीक है, पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, ये ओले गिरना बंद हो जाए। पर उसने बोला कि ये परमेश्वर को बोलो कि ये तूफान रोकने के लिए, और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मूसा ने कहा, ठीक है, हम जब बाहर जाएंगे तो मैं हाथ उठाऊंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और ये ओले बरसना बंद हो जाएंगे। देखो, मूसा ने फिरौन से कहा, जब मैं नगर को छोड़ूंगा तब मैं प्रार्थना में अपनी भुजाओं को यहोवा के सामने उठाऊंगा और गर्जन तथा ओले रुक जाएंगे। तब तुम जानोगे कि पृथ्वी पर यहोवा ही की है, पृथ्वी यहोवा की ही है। किंतु मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे अधिकारी अब भी यहोवा से नहीं डरते हैं और न ही उसका सम्मान करते हैं। जूट में दाने पड़ चुके थे और जौ पहले ही फट चुका था। जूट में दाने पड़ चुके थे, एक मिनट, जूट में दाने पड़ चुके थे मतलब जूट जो था ना, जो उगाते हैं, ओके, उसमें यावेळेस सातूचे दाणे, मराठीमध्ये सातूचे दाणे, उन्होंने क्या किया था, फसल लगाई थी। मराठी में सातूचे दाणे, हिंदी में जूट, ओके, और इंग्लिश में फ्लैक्स एंड बार्ली, ओके, वो नष्ट हो चुके थे। अब देखो, जूट में दाने पड़ चुके थे और जो जौ पहले ही फट चुका था, मतलब फ्लैक्स एंड बार्ली वर डिस्ट्रॉयड। समझा? उनके खेतों में जो फसल उगाई थी वो नष्ट हो चुका था। जूट और जौ आपण खातो ना, ओके, नष्ट हो गई, ओके। जूट में दाने पड़ चुके थे और जौ पहले ही फट चुका था, इसलिए यह फसल नष्ट हो गई। गेहूं और काठिया नामक गेहूं अन्य अन्नों से बाद में पकते हैं, अतः यह फसल नष्ट नहीं हुई थी। क्यों? गेहूं जो थे वो बाद में पकते हैं, इसलिए गेहूं नहीं आए थे। ठीक है, तो बच गए वो। मूसा ने फिरौन को छोड़ा और नगर के बाहर गया। उन्होंने यहोवा के सामने अपनी भुजाएं फैलाई और गरज तथा ओले बंद हो गए। वर्षा भी धरती पर होनी बंद हो गई।
जब फिरौन ने देखा वर्षा, ओले और गर्जन बंद हो गए तो उसने फिर गलत काम किया। वह और उसके अधिकारी फिर हट पकड़े रहे। मूसा गया बाहर, मूसा ने प्रार्थना की, ओले, बारिश, बिजली सब बंद हो गई, पर मूसा ने फैरो राजा ने अपना हृदय कठोर कर लिया, उसके लोगों ने भी अपना हृदय कठोर कर लिया। फिरौन ने इज़राइल के लोगों को स्वतंत्र पूर्वक जाने से इनकार कर दिया। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था, राइट। अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? देखो, पहला पॉइंट मैं बार बार ये पॉइंट हर वचन में ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो तो जो न्याय है, न्याय का स्तर बढ़ेगा। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो न्याय का स्तर बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो न्याय का स्तर बढ़ जाएगा। जर तुम्ही देवाची आज्ञा मोडली तर न्यायाचा स्तर वाढेल। जर तुम्ही देवाची आज्ञा मोडली तर न्यायाचा स्तर वाढेल। If you disobey God, the standard of judgment will become severe. देखो, हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 9:22 से 26। निर्गमन 9 देखो क्या हुआ। Then the Lord, Exodus 9:22-26. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards the sky so that hail will fall all over Egypt and on people and on animals and on everything growing in fields of Egypt. When Moses stretched out his staff towards the sky, the Lord said thunder and hail and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Hail fell and lightning flashed back and forth. It was the worst storm in all the land of Egypt since it had become a nation. Throughout Egypt, hail struck everything in the fields, both people and animals, and it beat down everything growing in the fields and stripped every tree. The only place it did not hail was the land of Goshen where the Israelites were. कीर्ती मराठीमध्ये वाच 22 ते 26. मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू आपला हात आकाशाकडे उभार, म्हणजे सर्व मिस्र देशावर गाराची वृष्टी होईल. मिस्र देशातील मनुष्यावर, पशुवर व शेतातील हर एक वनस्पती होईल. मोशेने आपली काठी आकाशाकडे उभारली तेव्हा परमेश्वराने मेघ गर्जना व गाराची वृष्टी केली आणि अग्नीचा लोळ जमिनीपर्यंत येऊ लागला. या प्रकारे परमेश्वराने मिस्र देशावर गाराचा वर्षाव केला. ह्याप्रमाणे गारा पडत असता मधून मधून अग्नीचा लोळ दिसत होता. ही गाराची वृष्टी एवढी भारी होती की मिस्री राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून त्यात कोठेही तशी कधी झाली नव्हती. सर्व मिस्र देशात मनुष्य, गुरे, ढोरे वगैरे जे काही वनात होते त्या सर्वांवर गाराचा मारा झाला. शेतातील सर्व वनस्पतीवर मारा झाला आणि वनातील सर्व वृक्ष मोडून गेले. मात्र गोशेन प्रांतात इस्रायल लोक राहत होते तेथे मुळीच गारा पडला नाही. ओके, निर्गम 22 से 26 हम पढ़ेंगे. देखो, जब परमेश्वर ने मैं हिंदी में बाद में पढ़ूंगी. जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि नील नदी को खून में बदला, उसके बाद मेंढक आए, फिर जुए आए, फिर और उनके जानवर मर गए, फिर बॉयल्स आए. इतना होने के बाद भी उसका हृदय कठोर का कठोर ही रहा. परमेश्वर उसे हर वक्त आकर बताता था कि अब नम्र हो जा, अब नम्र हो जा, अब मेरे लोगों को छोड़, अब मेरे लोगों को छोड़. बार बार वार्निंग दे रहे थे वो लोग, मूसा और हारून आके. इसने वो वार्निंग नहीं सुनी और इसी के वजह से परमेश्वर ने बोला अब मैं अपने स्तर को बढ़ाऊंगा और अब वो मैं ओले बरसाऊंगा. अब मैं वचन पढ़ लूँ, वो ओलों के वजह से उनके, आपको पता है वो देश की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो रही थी
एक देश किसके वजह से चलता है? पैसों की वजह से। और पैसे कहाँ से आते हैं एक देश में? जब एक देश में पैसे तब आते हैं जब वो कुछ अपने देश में उगाते हैं, लोगों को बेचते हैं, वहाँ से पैसा आएगा, है कि नहीं? गवर्नमेंट जब कुछ अपने यहाँ से कुछ उगाता है, या एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है उगाते हैं, बेचते हैं, तब उनको पैसा मिलता है कि नहीं? और थोड़ा टैक्स गवर्नमेंट लेता है, उससे अपना देश चलता है। पर अगर तुम पूरे जहाँ पे, अगर हमारा देश एग्रीकल्चर पे चल रहा है, मतलब खेती बाड़ी से चल रहा है, और उस देश की खेती बाड़ी ही नष्ट हो जाए, तो उस देश में पैसा आएगा क्या? तो इजिप्ट के पास मिस्र देश जो था, उसमें खेती बाड़ी का काम भी होता था और उसमें जानवरों का भी पालन होता था, पर जानवरों को भी मारा गया और खेती भी नष्ट की गई, तो वो देश में कुछ रहेगा अब? बट फिर भी फ़ारो का मन कठोर था। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ है, बोलती हूँ मैं, क्योंकि फ़ारो का मन कठोर था, इसलिए परमेश्वर ने ओले बरसाए, ओले और बिजली कड़की। तो बिजली सिर्फ कड़की नहीं, सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो नीचे आके गिर रही थी, तो उसकी क्या बन रही थी? फायर बन रहा था। जब मैंने मतलब कुछ स्कॉलर्स ने लिखा है कि बिजली नीचे आ रही थी तो उसकी आग बन रही थी, आग। और वो आग सारे जो उनके जो ये थे ना, उन्होंने जो फील्ड खेती लगाई थी ना, उन खेती को क्या कर रहे थे? राख कर रहे थे। सोचो, तुम्हारे यहाँ पे खेती लगाई है और वहाँ पे आग आ रही है और सारे खेत को जला रही है, क्या बचेगा? और हेल क्या, जो ओले बरस रहे थे, वो क्या नष्ट कर रहे थे? जानवरों को, लोगों को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये न्याय था। हम वापस से वचन पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को इसकी सीवियरिटी आपको बताने की क्या हुआ। निर्गमन 9:22 से 26 हिंदी में। यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी भुजाएं हवा में उठाओ और मिस्र पर ओले गिरना आरंभ हो जाएंगे। ओले पर पूरे मिस्र के सभी खेतों में लोगों, जानवरों और पेड़ पौधों पर गिरेंगे। अतः मूसा ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और यहोवा ने गर्जन और बिजली भेजी तथा जमीन पर ओले बरसाए। ओले पूरे मिस्र पर पड़े। ओले पड़ रहे थे और ओलों के साथ बिजली चमक रही थी। जब से मिस्र राष्ट्र बना था, तब से मिस्र को हानि पहुंचाने वाले ओले वृष्टि में यह सबसे भयंकर थे। आंधी ने मिस्र के खेतों में जो कुछ था उसे नष्ट कर दिया। ओलों ने आदमियों को, जानवरों और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। ओलों ने आदमी, जानवर और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। ओलों ने खेतों में सारे पेड़ों को भी तोड़ दिया। समझा? खेत के सारे पेड़ टूट गए ओलों की वजह से, क्योंकि इतने हेवी थे वो ओले। और आग थी, बिजली थी, वो क्या कर रही थी? फसल को नष्ट कर रही थी। ओलों ने खेतों के सारे पेड़ों को भी तोड़ दिया। गोशेन प्रदेश ही जहाँ इजराइल के लोग रहते थे, ऐसी जगह थी जहाँ ओले नहीं पड़े। देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाए रखा और जो उसकी बात नहीं मान रहे थे उनके ऊपर न्याय लाया। यही चीज मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर परमेश्वर न्याय किसके ऊपर ला रहा था। यहाँ पर वहाँ के लोग 3 भगवान को मानते थे। एक तो नट करके थी जो देवी थी, फिर एक ओसिरिस करके एक भगवान था, ओसिरिस, और एक सेट करके भगवान था। अब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। नट, ओसिरिस एंड सेट, ये तीनों जो भगवान थे वो अलग अलग भगवान थे। एक नट जो था वो स्काई गॉडेस थी, मतलब बादलों के ऊपर जो भगवान होता है ना, पानी बरसाने का, वो मानते थे कि पानी बारिश इस भगवान से आती थी। तो नट करके जो भगवान था वो बारिश लाता था। ओसिरिस करके जो था वो क्रॉप फर्टिलिटी गॉड था, मतलब खेतों में हमारे उपजाऊपन लाने के लिए ओसिरिस करके एक भगवान था। वो भगवान की अगर हम पूजा करेंगे तो हमारी खेती बाड़ी अच्छी होगी। पानी लाने के लिए हमको किसकी पूजा करनी पड़ेगी? नट की। नट ऊपर से पानी देगा। ठीक है, मैंने बोला था ना, ये लोग अलग अलग भगवानों को मानते थे। और एक स्टॉर्म गॉड था। स्टॉर्म गॉड मतलब अगर हम लोग के यहाँ पे आंधी तूफान आते हैं, आपने अमेरिका में कभी देखा है? मैंने रिसेंटली एक मूवी देखा, उसमें आंधी तूफान चलते हैं और आंधी तूफान में पता है अमेरिका में इतने आंधी तूफान आते हैं कि वहाँ पे नीचे से ही वो मगरमच्छ जो है ना, इनके घर पता है ना नीचे होते हैं, हमारे कैसे ऊपर है,
उनके घर नीचे होते, उनके घरों में भी मगरमच्छ आते हैं, क्योंकि वो आंधी तूफान जब आते हैं तो मगरमच्छ भी पानी से बाहर निकलते हैं ना, उनको भी सेफ पोजीशन चाहिए, इसीलिए वो घरों में जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आंधी तूफान के ऊपर एक भगवान है, और वो भगवान क्या, उसका नाम है सेट, और उसको वो पूजा करते थे, और वो मानते थे कि अगर हम नट की पूजा करेंगे, ओसिरिस की पूजा करेंगे और सेट की पूजा करेंगे तो नट जो है वो हमें सही टाइम पे बारिश देगा, ओसिरिस जो है हमारे खेतों की रखवाली करेगा, और सेट जो है वो आंधी तूफान नहीं लाएगा। तो ये तीन भगवानों की अगर हम आराधना पूजा करेंगे तो ये तीनों भगवान हमें बचाएंगे। तो परमेश्वर इन तीन भगवानों के ऊपर न्याय ला रहा था, और मिस्र देश को दिखा रहा था कि ये तीन भगवान तुम्हारे कुछ भी नहीं है, सच्चा परमेश्वर यहोवा है, सच्चा परमेश्वर यीशु है, और स्वर्ग जाना है तो यीशु के द्वारा ही जाओगे। यीशु कहता है मैं द्वार हूँ, मेरे होते हुए ही मैं द्वार हूँ स्वर्ग का, मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जाओगे। बाइबल में कहता है कि जो द्वार खोल के आता है ना वो चोर नहीं है, पर जो खिड़की से आता है वो चोर है। समझा? तो परमेश्वर इन मिस्र देश के लोगों की जो सोच थी उसको तोड़ रहा था कि तुम्हारी जो सोच है ना, ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, इनको मैं तोड़ रहा हूं। अगर तुम इनकी पूजा अर्चना करते हो ना तो इन भगवानों ने तुम्हें बचाना चाहिए, आंधी नहीं आनी चाहिए। आंधी कैसे आ रही है? हाँ, तुम बारिश के लिए नट की पूजा करते हो तो नट ने बारिश नहीं लानी चाहिए ना, तो नट के ऊपर कोई है जो बारिश लेकर आ रहा है? क्योंकि नट बारिश के लिए जिम्मेदार था, पर वो देवी थी जो जिम्मेदार थी बारिश लाने के लिए। अब तो नट ने नहीं लाना चाहिए था, पर जोर से बारिश गिर रही थी, जोर से बिजली गिर रही थी। ओसिरिस जो था उसका काम था हमारी खेतों की रखवाली करना, पर ये जो बारिश ही नहीं आ रही थी, सिर्फ ओले बरस रहे थे। तो कहाँ गए तुम्हारे भगवान जो तुम्हारे रखवाली करने के लिए, जो तुम इनकी पूजा अर्चना करते हो? वो तो बारिश भी ला रहा है, ओले भी ला रहा है, कहाँ गया? और तुम्हारे खेत भी नष्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग जो गिर रही थी, जो बिजली गिर रही थी, वो खेतों को नष्ट कर रही थी। सेट क्या है? सेट जो था वो स्टॉर्म गॉड था। स्टॉर्म गॉड मतलब आंधी तूफान को रोकने वाला परमेश्वर भगवान था। आंधी तूफान नहीं लाएगा, इसकी पूजा करोगे तो आंधी तूफान नहीं आएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर उनके सोच को बार बार चैलेंज कर रहा था कि तुम्हारा नट कहाँ गया भाई? नट कहाँ गया जो इतनी बारिश गिर रही है, वहां से ओले भी गिर रहे हैं? तुम्हारा ओसिरिस किधर गया? क्योंकि मैं बिजली लाके तुम्हारे खेतों को नष्ट कर रहा हूँ। और तीसरा सेट किधर गया? जो मैंने आंधी तूफान लाए, तो सेट क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? या उसने भी कई जगह ले ली वो क्रोकोडाइल की तरह किसी के घर में जाके? परमेश्वर ऊपर है, सारे परमेश्वर भगवान के ऊपर है। भगवान कुछ नहीं है, परमेश्वर एक ही है, और वो है यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब एक ही है। और अब अगर स्वर्ग जाना है तो यीशु को अपनाना ही पड़ेगा, तभी स्वर्ग जाओगे, वरना स्वर्ग का रास्ता बंद है आपके लिए। अगर दूसरे जगह से जाना चाहिए, अगर जाना है आपको, तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हो। डेफिनेटली स्वर्ग जाना है तो यीशु की ही उपासना करके स्वर्ग जाओगे। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें क्या सीखना है? जब परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है बदलने के लिए, जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कि यहाँ पे तू बदल, यहाँ पे तू बदल, यहाँ पे तुझे बदलने की ज़रूरत है, परमेश्वर बार बार आपको कुछ चीज़ सिखा रहा है और आप सीख नहीं रहे हो, बार बार आपको वार्निंग दे रहा है कि ये चीज़ मत करो, आप गलत करो। परमेश्वर फैरो को बोल रहा था कि मेरे लोगों को छोड़। जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है करने के लिए और आप जब नहीं करते हो तो परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आएगा। मूसा और हारून बार बार जाकर फैरो को बोल रहे थे, भाई मत कर मत कर मत कर, लोगों को छोड़ दे, लोगों को छोड़। पर उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि उसने बदलने का नाम ही नहीं लिया। परमेश्वर ने बोला तुझे नहीं बदलना है तो मेरा न्याय तेरे ऊपर अब सीवियर आएगा। लास्ट के जो 3-4 जो न्याय थे वो काफ़ी सीवियर थे, वो काफ़ी डेंजरस न्याय थे। आपको पता है इसकी वजह से इजिप्ट की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इजिप्ट की इकोनॉमी नहीं, पूरे देश भर में लोगों को पता चल रहा था कि है क्या। समझ में आ रहा ना? राहब जो थी, राहब
जब वहाँ पे लोग आए, यहोशू के जो स्पाइस थे, दो लोगों को भेजा था कि देख क्या यरीको क्या है, यरीको की दीवार कितनी मजबूत है, क्या है देख के आओ। राहब ने जब उनको देखा तो राहब को भी पता चला कि बाबा ये लोग मिस्र देश का क्या हुआ हमें पता है, वहाँ पे तुम्हारे साथ परमेश्वर चलता है, हमें पता है, मुझे नहीं पंगा लेना है। तो मिस्र देश के में जो हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता चल रहा था कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, यीशु सच्चा परमेश्वर है और तुम्हारे भगवान कुछ नहीं है। और जब राहब के पास कितने सालों के बाद आई थिंक वो राहब के पास आए होंगे, ये तो कब की बात है, जब मूसा था, मूसा को फिर भी ये 40 साल भटके, 40 साल के बाद यहोशू उनको लेकर आया। तो शायद राहब छोटी होगी और अब बड़ी हो गई होगी, पर राहब ने वो सुना था, उसे पता था कि भाई ये यहोशू के लोग हैं, मुझे इनसे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इनके साथ कौन चलता है। और सच में राहब ने इनके लिए बहुत अच्छे काम किए थे। यहोशू के दोनों सेवक के लिए, दासों को उनको छुपाया, परमेश्वर ने उसे भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने राहब की शादी की। बोआज, पता है कि अपना रूत और बोआज, राहब बोआज की मम्मी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने राहब को उठाकर एक रॉयल फैमिली में लाया और उसकी शादी बनाई, ओके। और उसको जो बच्चा हुआ वो कौन था, बोआज। और राहब का जो पति था, राहब एक प्रोस्टिट्यूट थी। कौन थी, प्रोस्टिट्यूट मतलब एक वैश्या थी। पर परमेश्वर ने, क्योंकि वो उसने परमेश्वर के व्यक्ति के लिए किया था, परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा और परमेश्वर ने उसकी शादी किससे करवाई, एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत रिच था, धनवान था, ओके। और वो यीशु के वंशावली में उसका नाम आता है। हालेलुया। देखो, जब तुम परमेश्वर के व्यक्ति के लिए कुछ भी करते हो, परमेश्वर उसे भूलेगा नहीं। भले ही वो तुम्हें जो तुम चाहते हो वैसा नहीं तुम्हें मिलेगा, पर कहीं और से तुम्हें वो कंपेंसेट करेगा, कहीं और से कुछ चीज़ें तुम्हें और कुछ देगा, जहाँ से परमेश्वर, तुमने अगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ किया है, तो परमेश्वर कहीं और से तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले, कहीं और से ब्लेस करेगा, पर ब्लेसिंग जरूर मिलेंगे। हालेलुया। और इसीलिए देखो, परमेश्वर बार बार यही कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ बदलने के लिए, और अगर तुम बदल नहीं रहे हो, तो मेरा न्याय तुम पर आएगा, और वो न्याय काफ़ी सीवियर होगा, उससे तुम काफ़ी बड़ा होगा और तुम उससे बच नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी हमें भी क्या करना है, जब हम परमेश्वर में आने के बाद अगर परमेश्वर हमसे बोलता है कुछ करने के लिए, तो तुम करोगे या नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? थोड़ा डर लगेगा, बट करोगे कि नहीं? या गुड। देखो, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर, गॉड विल गिव यू टाइम टू रिपेंट। पर गॉड विल गिव यू टाइम टू रिपेंट। परमेश्वर तुम्हाला पश्चाताप करायला वेळ देईल। परमेश्वर तुम्हाला पश्चाताप करायला वेळ देईल। परमेश्वर तुम्हें पश्चाताप करने को समय देता है। परमेश्वर तुम्हें पश्चाताप करने के लिए समय देता है। ओके, परमेश्वर तुम्हें पश्चाताप करने के लिए समय देता है। देखो, एक्सोडस 9:15-16, निर्गमन 9:15-16 हम पढ़ेंगे। For by now I could have stretched out my hand and struck you and your people with a plague that would have wiped you off the earth. But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. मी
मराठीमध्ये निर्गम 9:15-16, मी माझे सगळे सामर्थ्य वापरून असा आजार तुम्हावर पाठवू शकतो की त्यामुळे तू व तुझी प्रजा या पृथ्वीवरनं नष्ट व्हाल, परंतु मी तुला एका हेतूने ठेवले आहे की मी तुला माझे सामर्थ्य दाखवावे, मग सर्व जगाला मी कोण आहे हे कळेल. निर्गम 9:15-16, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ तथा मैं ऐसी बीमारी फैला सकता हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को धरती से समाप्त कर देगी, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ किसी कारणवश रखा है. मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है कि तुम मेरी शक्ति को देख सको, तब सारे संसार के लोग मेरे बारे में जान जाएंगे. सी देखो, जब भी परमेश्वर तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है और तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है, परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं लाएगा. ये 5 जो न्याय थे, नील नदी का खून में बदलना, जुए आना, मेंढक आना, लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स पशु मरना, या और क्या था, बॉयल्स आना, ये सारा टाइम दिया गया था उन लोगों को, फैरो को बदलने के लिए. परमेश्वर बोल रहा था मैं चाहूँ तो एक ही महामारी लाऊंगा और उसमें सारे इजिप्ट को नष्ट कर दूंगा, गोशेन को छोड़कर. गोशेन मेरे लोग हैं, बाकी एक झटके में मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, एक झटके में. पर मैंने तुम्हें नष्ट अभी तक नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? क्योंकि परमेश्वर फैरो को टाइम दे रहा था, एक एक न्याय दिखाकर टाइम दे रहा था कि बदल बदल, अभी भी समय है, बदल बदल बदल, मत कर वैसा, मत कर, मेरे लोगों को तंग मत कर. पर कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं, कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि इतना सब सुन के परमेश्वर का वो बदलते नहीं हैं, क्योंकि उनको गाजर दिखाया जाता है. लूसीफर गाजर दिखाता है और गाजर में वो खो जाते हैं. भाई गाजर गाजर गाजर. परमेश्वर बोलता है तू क्या गाजर गाजर देखता है, अगर स्वर्ग में होता ना मैं अपने हाथों से खिलाता तुझे. तूने लूसीफर का गाजर देखा और अपनी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद करके ले ली. अगर उसका गाजर नहीं लिया होता और मेरी बात मानता तो आज तू बचता और स्वर्ग जाता और मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता. कौन सी अच्छी चीज़ है, लूसीफर का गाजर या परमेश्वर के हाथों से खाना? परमेश्वर के हाथों से खाना. थोड़े टाइम के लिए लूसीफर गाजर दिखाता है, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, तू ऐसे चीज़ें कर, तू वैसे चीज़ें कर, वैसे चीज़ें कर, तुझे घर मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा. गाजर दिखा गया गया गया. परमेश्वर स्वर्गदूत के ऊपर स्वर्गदूत को वार्निंग दे रहा है, भेज रहा है बोलने के लिए, अरे मत कर, रुक जा, रुक जा. मैं वापस बार 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 इतने सालों से बोल रहा हूँ, स्वर्गदूतों को भेजकर वार्निंग दे रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं आ रही है. तुम वापस से मेरे बेटी के साथ फाइट कर रहे हो. तो अब न्याय होगा और उस न्याय से कोई भी नहीं बचेगा. जब तुम्हें वार्निंग दी रही थी तो क्या तुम सोए थे? परमेश्वर बार बार उसके स्वर्गदूत को भेजकर तुम्हें वार्निंग दे रहा था कि नहीं? सच बोलो, अभी झूठ बोलने का कुछ बचा ही नहीं है, सब बाहर आ रहा है. दिया था कि नहीं वार्निंग? दिली ना. तो क्या चीज थी जो तुम्हारे हृदय को कठोर कर रही थी? क्यों नहीं नम्र हो रहे थे तुम कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए जब परमेश्वर मुझे बोल रहा है? तुमने वो गाजर को देखा, क्योंकि लूसीफर क्या करता है, गाजर दिखाता है. वो गाजर घर होगा, वो गाजर तुम्हें पैसा देगा, वो गाजर तुम्हें शोहरत देगा, नाम देगा, पोजीशन देगा, पावर देगा, और उसके लिए तुम पागल होते हो. लूसीफर जो शैतान जो है, उसने फैरो का हृदय कठोर किया. उसको पता है लूसीफर का प्लान क्या था,
कि इनको जाने नहीं देना है, इनको यहीं पे रखना है, सड़ाना है इनको और इनके पीढ़ी को ही मार डालना है। आज भी यहूदी लोगों के साथ वो कौन से लेवल पे अटैक करता है, देखा ना? अच्छा नहीं लगता है उसे यहूदी लोग, क्यों? यहूदी लोगों के द्वारा यीशु आया है। और ये लूसीफर को क्या चाहिए था? फैरो का हृदय में कठोर करूंगा, क्योंकि फैरो वो लोगों को अपने पास रखेगा, मैं इनको तड़पा तड़पा के काम दे दे के मैं इनको मार डालूंगा, ताकि इनकी पीढ़ी भारी नहीं आए। और जब बाहर आई, जब इसमें से बच्चा भी आया यीशु, तो भी राजा किंग हेरोड ने क्या बोला वो पता है आपको? जब यीशु आया, यीशु आने के बाद वो दूसरे देश के जो लोग थे, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, उन्होंने स्टार देखा, यीशु का तारा देखा, और उन्होंने बोला ये तारा क्या है? ये तारा किसी राजा का तारा लग रहा है, ये ऐसा डेस्टिनी, ऐसे स्टार हमने कभी देखे नहीं है, ऐसा कोई स्टार आते हुए, ये क्या स्टार है? और क्योंकि वो लोग ज्ञानी लोग थे और वो स्टार्स के बारे में पढ़ते थे, उनको परमेश्वर ने एक साइन दिखी, ऐसा एक स्टार आया है। और वो स्टार क्या था? वो स्टार यीशु का था। और वो स्टार उनको दिखा, उनको पता चला कि परमेश्वर का कुछ बहुत बड़ा राजा का जन्म हुआ है। पता है, उनको दिखाने के लिए पहले एक बार स्टार आया, पर जब वो लोग निकल पड़े ना वापस उसको देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए, तो वो स्टार वापस से आया। वो देख के पहले चला गया, उनको पता चला कि कुछ तो बड़ा हुआ है, और बाद में वो स्टार रीअपियर हुआ, वापस आया। और पता है, वो स्टार आगे आगे चल रहा था उनको रास्ता दिखाने के लिए, और ये लोग पीछे पीछे जा रहे थे। वो स्टार उनको बता रहा था कि यीशु कहाँ है। वो स्टार इतना बड़ा स्टार था, इतनी बड़ी डेस्टिनी थी यीशु की, कि उसे सबके लिए जान कुर्बानी देनी थी, और सबके लिए स्वर्ग खरीदना था, सबके पापों की पेनल्टी पे करनी थी उसको, पापों का पश्चाताप करना था, अटोनमेंट, लाइक सबके पाप अपने ऊपर लेके सबको निकालना था यीशु को। और जब उन्होंने देखा, वो लोगों ने, वो स्टार वहाँ पे रुका, और वहाँ पे जो झोपड़ी थी वो उसके झोपड़ी के अंदर गए, तो उन्हें देखा कि यहाँ पे ये बच्चा है। हालेलुया। उस बच्चे के लिए फ्रैंकिनसेंस, बड़े बड़े मसाले, चीज़ें वो लेके गए राजा को, लोबान, मुरलोबान, ये, और उसको गले में डाला उसके, क्योंकि वो लोग ने एक्नॉलेज किया, उन्होंने विश्वास किया कि ये राजा है। सोचो, वो 2 साल का होगा यीशु तब। आपको क्या लगता है वो लोग बच्चे होंगे? उनका उद्धार हुआ होगा? बोलो जल्दी, हुआ होगा? हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज किया। आपको पता है, वही लोग, जब मैगी, जो लोग वहाँ से आए थे, उन्होंने जब बोला कि यहाँ बेथलेहम में एक राजा जन्मने वाला है, कहाँ है वो? किंग हेरोड को जब पता चला कि यहाँ पे कौन राजा आ रहा है, वो खुद राजा था तब, और एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो डर गया कि मेरी पोजीशन ले लेगा। अरे अभी वो बच्चा है, वो कौन सी तेरी पोजीशन लेगा? वो इतना उसके अंदर जलन था कि वो मेरी पोजीशन ले लेगा, इसलिए उसने 2 साल के नीचे के बच्चे जो थे उनको सबको मार डाला। पता है, इतनी बड़ी डेस्टिनी थी यीशु की, पर परमेश्वर उसके साथ था, उसे मारने नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आप देखो, परमेश्वर आपका किंग हेरोड जो था, उसका भी कठोर था हृदय, अंदर जलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारा उसके अंदर था, नम्र नहीं था वो। और परमेश्वर अगर नम्र लोग नहीं है ना, उनको टाइम देता है। परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बोलता है ना, तो उनको टाइम भी देता है कि उस टाइम में बदल जाओ, उस टाइम में बदल जाओ। अगर तुम उस टाइम में बदल जाते हो तो तुम्हारा अच्छा है, अगर तुम नहीं बदलते हो तो न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि जब हम अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। आप यीशु में आने के बाद आप बोलोगे कि मैं गलत काम करूँगा और मैं ऐसे ही रहूँगा, तो नहीं है, आपके ऊपर न्याय आएगा। न्याय के पहले परमेश्वर आपको चांस देगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा कि ये जो किया है वो गलत है। आपको वहाँ पर पश्चाताप करना है कि हाँ, मुझे ये किया है, मैंने गलत है, मैं आगे कभी नहीं ऐसा करूँगा, और आपको बदलना है। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब आप बदलोगे, परमेश्वर वापस आपको चांस देगा, आपके ऊपर न्याय नहीं आने देगा। पर यहाँ पर क्या हुआ था? फैरो राजा ने वो जो समय जो उसको दिया था ना, वो समय जा चुका था।
एक समय आपको परमेश्वर देगा बदलने के लिए। उस टाइम पे आपको वार्निंग भी आई ना, तो एक समय देगा बदलने के लिए। उस समय में अगर आप बदलते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बदलोगे तो आपका पाप का घड़ा ओवरफ्लो होगा, तो परमेश्वर बोलेगा तेरा पाप का घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है, अब तेरा न्याय का समय आ चुका है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब परमेश्वर आपसे हल्के से भी बात करता है या स्वर्गदूत आके उससे आपसे बात करते हैं, तब पीछे हट जाओ। जो आप गलत काम करने की सोच भी रहे हो, पीछे हट जाओ, न्याय आएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे और एक चीज मुझे बतानी है। देखो 20वां वचन हम पढ़ेंगे, सुनो फटाफट। निर्गमन 9:20। Those officials, Exodus 9:20-21. Those officials of Pharaoh who feared the word of the Lord hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored the word of the Lord left their slaves and livestock in the field. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards the sky so that hail will fall over Egypt and all people and animals and everything growing in the fields of Egypt. देखो क्या हुआ, 20-21 हम पढ़ेंगे। फॅरोच्या सेवकांपैकी काहींनी परमेश्वराच्या संदेशाचा मान ठेवून लगेच आपली गुरेढोरे व गुलाम यांना आसऱ्याला घरी आणले व सुरक्षित जागी ठेवले। समझ में आ रहा है? परंतु इतर सेवकांनी परमेश्वराच्या संदेशाकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे रानातील त्यांचे सर्व दास व गुरेढोरे शेरडे मेंढरे मरून गेली। फिरौन ने, हिंदी में, फिरौन के कुछ अधिकारियों ने, निर्गमन 9:20-21, फिरौन ने कुछ अधिकारियों ने यहोवा के संदेश पर ध्यान दिया। उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जानवरों और दासों को घर में कर लिया, किंतु अन्य लोगों ने यहोवा के संदेश की उपेक्षा की। उन लोगों के वे दास और जानवर नष्ट हो गए तो बाहर मैदानों में थे। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी और मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में आधा ही छोड़ दिया है। देखो जो परमेश्वर ने जब बोला ना, ऐसे मूसा और हारून आए और जब फैरो से बात की, और तो फैरो के नीचे जो दास थे ना, उन्होंने सुन लिया क्या बोल रहा है। इतने तो सारे हमने देख लिए न्याय, अब बोल रहा है ओले गिरने वाले। और ओले गिरने वाले तो परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, दासों को अंदर लेके आओ, जानवरों को अंदर लेके आओ। कुछ जो दास जो थे ना मूसा फैरो के, वो उन्होंने परमेश्वर की बात मानी और उन्होंने अपने जानवरों को, अपने दासों को अंदर ले लिया, रूम के अंदर। और जब ओले गिरने लगे तो वो बच गए। पर कुछ जो दास थे ना फैरो के नीचे काम करने वाले, उन्होंने बोला ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो पागल लोग थे, वो फैरो का ही डीएनए लेकर चल रहे थे। वो इतना सब होने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। 5 बार जब मूसा ने कहा कि नील नदी का खून में बदलेगा पानी, मेंढक आएंगे, जुए आएंगे, लाइफ स्टॉक मरेंगे, हाँ जानवर मरेंगे, बॉयल्स आएंगे, तो हुआ है ना वो। अब 6वीं बार जब परमेश्वर तुम्हें बोल रहा था तो अक्ल तो होनी चाहिए। तुम्हारा माइंड ब्लॉक कर दिया था शैतान ने, तुम्हें सोचने ही नहीं दे रहा है वो कि क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए बाकी के लोगों ने क्या बोला, परमेश्वर क्या बोलता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, छोड़। उन्होंने अपने दासों को बाहर रखा, जानवरों को बाहर रखा, और जब ओले गिरने लगे तो वो जानवर और वो दास मर गए। सी बी ओबीडियंट टू गॉड। हमेशा देखो, आज नहीं हो तुम लोग, आने वाले दिनों में आने वाले हो, है कि नहीं? पर जब आओगे तो परमेश्वर की बात मानना सीखो। जितनी परमेश्वर की बात मानोगे, जितना परमेश्वर के अधीन रहोगे, उतना आशीष आपको मिलेगा, उतने ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। आपके ब्लेसिंग्स कोई रोक नहीं पाएगा। पर जितना आप विरुद्ध काम करोगे परमेश्वर के, उतना ही आपको परमेश्वर फोड़ेगा। देखो, आप एक बार यीशु में आने के बाद आप उसके बच्चे बन जाते हो, ठीक है? अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है ना, तो आप फट मारोगे कि नहीं? अगर वो छोटा है और अगर वो छुरी ले रहा है तो आप उसको फटका मारोगे कि नहीं? वो बच्चे के हिसाब से आपको वो मारेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे डांटता भी हूँ, है कि नहीं? मैंने बहुत डांट खाई है।
मैंने बहुत डांट खाई है परमेश्वर से, सच में। प्यार से ज़्यादा मैंने डांट ही खाई है, मुझे ऐसा लगता है। पर जो भी है, मैं यहाँ तक आई हूँ, आगे भी जाने वाली हूँ। बट ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार नहीं किया, प्यार किया है, बट बहुत डांट खाई है मैंने। मैं अगर कहीं भी थोड़ा भी गलत जाती थी तो परमेश्वर मुझे डांट के लाइन पे लाता था। और थैंक यू कि परमेश्वर ने मुझे डांटा और लाइन पे लाया, वरना मैं बर्बाद हो जाती, है कि नहीं। एक प्रॉफिट अगर परमेश्वर के अधीन नहीं चलता है तो उसकी वाट लग सकती है कि नहीं। तो कभी भी अगर परमेश्वर आपको डांटेगा भी तो डांट सहन कर लो, और जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, इससे आपकी भलाई होने वाली है। आमेन। देखो, पहले जो 5 जो न्याय थे ना, वो परमेश्वर का अनुग्रह था फैरो के ऊपर। फैरो के ऊपर अनुग्रह देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि फैरो को सिर्फ दिखाना था कि फैरो, मैंने 5 ये जो बताया ना, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ना मेरे बच्चे जानते हैं मैं कौन हूँ, मुझे दिखाना तो पड़ेगा मैं कौन हूँ। और मेरी पावर जब आएगी और ये 5 न्याय आएंगे तभी तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। पर एक ही न्याय में मैं इजिप्ट को बर्बाद कर सकता था कि नहीं, है कि नहीं। मुझे क्या रखने की इनको जरूरत है, पर मैंने इसलिए रखा ताकि ये लोग पश्चाताप करेंगे। मैंने इसलिए मूसा और हारून को 5 बार भेजा ताकि वो बदलेंगे। पर कई बार स्वर्गदूत ने आपको बोला भी कि बदलो बदलो बदलो, पर आप नहीं बदले। और आज जो आप न्याय सहन कर रहे हो, ये आपके वजह से हो रहा है। परमेश्वर के ऊपर ब्लेम मत करो, परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया है, ये आपके वजह से हो रहा है कि आप नहीं बदले। वो समय था आपका बदलने का, वो समय था आपको राइट काम करने का। आप पीछे हट सकते थे कि नहीं, मुझे नहीं करना है भाई, मुझे गलत नहीं करना है, पर आप पीछे नहीं हटे, क्योंकि लूसीफर ने आपको गाजर लटकाया था, भाई ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। क्या यार, वो थोड़ी जिंदा रहने वाली है, तुम्हारा लाइफ अच्छी होने वाली है, वो थोड़ी जिंदा रहेगी, वो बचेगी भी नहीं। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। वो बचेगी नहीं, जिसके लिए 3000 साल पहले भविष्यवाणी आई है, बाइबल में भविष्यवाणी लिखी है, वो बचेगी नहीं लड़की। परमेश्वर कुछ भी करेगा पर उसको, उस लड़की को बचाएगा, और कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता, वो नहीं बचेगी। प्रॉब्लम तुम्हारा ये है कि लूसीफर तुम्हें वचन जानने नहीं देता है, तुम्हें गहराई पता नहीं है, तुम्हें बाइबल नहीं पता है। और जब तुम्हें स्वर्गदूत आके भी तुम्हें बोलते हैं, तभी भी तुम्हारा दिमाग उसने ब्लॉक करके रखा है कि तुम्हें सच्चाई नजर ही नहीं आती क्या करनी है। और कुछ और लोगों ने तुम्हें फुसलाया, लूसीफर भी उसमें था, और लोगों ने भी फिसलाया, और इसी की वजह से आज बलि कौन चढ़ रहा है? तुम चढ़ रहे हो। अगर तभी बात मान ली होती ना, तो आज तुम जिंदा बचते। तो यहां से क्या सीखना है हमें? परमेश्वर टाइम देगा पश्चाताप करने के लिए। जिन लोगों ने परमेश्वर की बात मानी और अपने दासों को अंदर लिया, जानवरों को अंदर लिया, वो बच गए, उनके जानवर और दास। पर जिन लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जानवर बाहर छोड़ दिए, दास बाहर छोड़ दिए, उनके अपने फैमिली, उनके दास भी मर गए और उनके जानवर भी मर गए। तो जिंदगी में ऐसा कभी मत करना। जो परमेश्वर आपको बोलता है वो करो। जब पश्चाताप का टाइम देता है आपको करने के लिए, तो पश्चाताप करो, रिपेंट और बदलो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मैंने पश्चाताप कर दिया, बदलाव लाना है आपके अंदर। आपको आपके ऊपर काम करना है। नहीं, मैं ये काम करती थी, मैं चोरी करने का काम करती थी, पर मैं अब बदलूंगी। मैं झूठ बोलती थी, पर मैं अब बदलूंगी। मैंने ये गलत काम किया है, पर मैं अब बदलूंगी। और रियल में बदलो। जितना तुम बदलोगे उतना ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। आपको पता है, कुत्ते जो होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग क्या करते हैं? कुत्ते को अगर बोलना है ना सिट सिट, बैठने के लिए बोलना है, तो वो हम क्या बोल देंगे? वो ट्रेनर जो आते हैं ना, वो बोलते हैं सिट सिट सिट। सिट बोलेंगे तो वो बैठ जाते हैं। जब वो बैठने के बाद ना, उनको ना ट्रीट दिया जाता है खाने के लिए। उनको ट्रीट, कि ट्रीट मतलब उनका जो, हमें कैसा कैडबरी अच्छा लगता है, उनको भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है। वो जब तुम दोगे ना, तो वो सुनते हैं। और तुम, उसको पता है कि अगर उसने सिट बोला और वो बैठ गया तो उसको ट्रीट मिलेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रेनिंग की जाती है। उनको ना बताया जाता है कि तुमने अगर मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो जब वो बोलता है सिट, तो वो बैठेगा, उसको ट्रीट मिलेगी। जब वो बोलेगा कि चलो खड़े हो जाओ, वॉक, तो वॉक करने लगेगा, तो उसको ट्रीट मिलती है। मतलब वेफर जैसा कुछ मिलता है, जो भी है उसको अच्छा लगता है।
उसके वजह से क्या होता है, वो कुत्ते को पता चलता है कि अगर मुझे मेरा मास्टर जो बोल रहा है अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रीट मिलेगी। वैसे ही हमारे साथ है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर जो बोलता है हम करते हैं, आशीष खुलने लगते हैं, हालेलुया, ब्लेसिंग्स आने लगते हैं। पर तुम विरुद्ध काम करोगे परमेश्वर के तो क्या आएंगे, कर्सेस आएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देयर विल बी कर्सेस ओवर योर लाइफ विच यू विल हैव टू गो थ्रू। श्राप आएंगे और श्राप से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं यहीं पे वचन मेरा समाप्त कर रही हूँ। 2 ही आज हमने पॉइंट सीखे हैं। एक तो पहले कि अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो जजमेंट ऊपर 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 होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे एक पॉइंट और एक लेना है कि यहाँ पर हेलस्टॉर्म्स जो आए, ओके, ओले जो बरसाए, जो लाइटनिंग हो रही थी, उसकी वजह से इजिप्ट में क्या हो रहा था, बर्बादी हो रही थी, उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, है कि नहीं। पर जो लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, गोशेन में, मिस्र देश का ही छोटा भाग गोशेन, वहां पर क्या हो रहा था, क्या ओले नहीं आए, ना लाइटनिंग नहीं आया, ना आंधी तूफान नहीं आए, ना बिजली नहीं गिरी, ना ओले नहीं आए, कुछ नहीं। उनके जानवरों को भी कुछ नहीं हुआ, ना मनुष्य को कुछ नहीं, बिंदास घूम रहे थे वो लोग। तो कैसे ये मुमकिन है कि एक आंधी आती है पर ये आंधी गोशेन के अंदर नहीं आती है, गोशेन के बाहर रहती है और मिस्र देश को ही तबाह करते हैं। इसका मतलब ये है ना कि परमेश्वर उस आंधी तूफान के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। परमेश्वर उस आंधी को बोलता है कि गोशेन में एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ से हम सीखते क्या है कि जो लोग परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आंधी तूफान, ओले, बिजली गोशेन में एक भी आई नहीं, एक बार भी नहीं आई, एक भी व्यक्ति मरा नहीं वहां पे। पर यहां पर क्या, जानवर मरे। और ऐसा नहीं है, देखो परमेश्वर का हृदय देखो, परमेश्वर ने बोल के वो किया है कि नहीं। वो बिना बोल के भी कर सकता था ना, वो बोल सकता था मैं कल आंधी में ओले बरसाऊंगा, वो इतना बोल के भी रुक सकता था कि नहीं, मैं ओले बरसाऊंगा और मैं नष्ट करूंगा, खत्म। पर पता है उसका हृदय देखो, उसको बचाना था लोगों को, उसको पता था कि वो जानवरों ने क्या मेरा बिगाड़ा है कि नहीं। ये परमेश्वर का हृदय है, वो जानवरों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये दासों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये दास के पास अथॉरिटी क्या है, फैरो कठोर बना है, इसके वजह से इनको बेयर करना पड़ रहा है। पता है तुमको, क्योंकि तुम कठोर हो, इसी के वजह से किसी और की जान और की बलि चढ़ रही है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग है ना, लूसीफर कुछ बड़े लोगों का इस्तेमाल करेगा और उनके हृदय को कठोर करेगा, और वो अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपनी सोचेंगे। मेहनत कौन कर रहा है, फैरो राजा के नीचे जो काम कर रहे थे, उन्होंने जब मूसा और हारून की बात सुनी तो उन्होंने बोला भाई निकाल लो अपने लोग, दास निकाल लो, एनिमल्स निकाल लो, हम बचाएंगे, है कि नहीं। दूसरे दासों ने बोला है कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ दो दास और इनको रहने दो, वो मर गए। शैतान कुछ फैरो के दासों को, फैरो राजा के नीचे काम करने वाले कुछ ऑफिशियल जो थे, उनके हृदय को कठोर कर दिया और कुछ को नहीं किया। कई बार तुम इसलिए मर रहे हो, तुम्हारी जान इसलिए जा रही है क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई था जिसने मन कठोर कर लिया था तुम्हारे लिए। शायद वार्निंग आने के बाद भी वो वार्निंग उसको भी मिली थी, पर वो वार्निंग मिलने के बाद उसने मन कठोर कर लिया उन दूसरे दासों की तरह, और उसने बोला मेरे जो दास वहां पे काम कर रहे हैं ना, करने दो उनको काम, वहां पे फुकट का मुझे खाने को मिलेगा ना, करने दो उनको काम, वो उनको वहां पे काम करने दो, खेती बाड़ी करने दो, जानवरों को भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठ के खाऊंगा और वो दास काम करेंगे और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भले स्वर्गदूत आके मुझे बोलता भी है कि ऐसा मत कर, फिर भी मैं मेरे नीचे वाले जो है मैं उससे काम करवाऊंगा वो, ताकि वो मरे। वो मरता भी है तो भी क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोगों की जान जा रही है, क्योंकि उन दासों ने
अपने उन फैरो के अधिकारियों ने अपने दासों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने अपना हृदय कड़ा कर लिया है, कठोर कर लिया है, और उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोची कि मेरा खाने पीने का क्या होगा। तू मर वहां पे जाके, कुछ नहीं होगा। स्वर्गदूत बोल रहा है कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत बोल रहा है कुछ नहीं होगा, तू कर, पर मुझे हर महीने का पैसा लाके दे, मेरा पेट भरना चाहिए। आज वो मर भी रहे हैं ना तो कोई गम नहीं है, क्योंकि उनको वार्निंग आई थी। पर बुरा इस बात का लग रहा है कि साला तू मर रहा है तो ठीक है, पर तेरे दासों को क्यों मार रहा है? उन जानवरों ने क्या बिगाड़ा है? उन दासों ने क्या बिगाड़ा? उनके पास क्या ऑथोरिटी थी? इसीलिए तेरा न्याय अब जो होगा ना, तूने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा, वो लेवल का न्याय मैं तेरे ऊपर लाऊंगी। लिख के रखना, तो मेरा पेट भरना चाहिए, बाकी लोग गए भाड़ में, है ना। लूसीफर ने मुझे गाजर दिया है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ बात करूंगा और क्या करना है क्या देखूंगा कि उस लड़की की हत्या कैसे करते हैं हम। तो परमेश्वर भी तुझे आज ये बोल रहा है कि तू अब सिर्फ उल्टी गिनती करना शुरू कर, क्योंकि तेरे दिन भर चुके हैं और तेरी सजा जो होने वाली है ना जिंदगी में, तूने सोचे नहीं है उतनी लेवल की सजा होने वाली है। साला तू तो जा रहा है, पर तूने तेरे नीचे वाले लोगों को जो काम दिलाया ना, उसके वजह से वो मर रहे हैं। बहुत अटैचमेंट है ना तुम्हें। परमेश्वर जब बोल रहा है फिर भी अटैचमेंट रखनी है तुम्हें, तो रखो अटैचमेंट। और तुम्हारे अटैचमेंट की वजह से जिनकी गलती नहीं है वो भी जा रहे हैं, तो सहन करो। अब मैं वचन यहीं पे समाप्त करूं। परमेश्वर यीशु में धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि परमेश्वर जो भी हमने सुना है कि जब हमें समय मिलता है बदलने के लिए, हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए। और हमने ये भी सुना है कि जब भी तू हमें आज्ञा देता है कुछ भी, तो हमें उस आज्ञा का पालन करना है प्रभु। भले ही हमें हो या ना हो, कभी कठिन हो सकता है उस आज्ञा का पालन करने के लिए, पर परमेश्वर उस आज्ञा का पालन करने के लिए हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम जो तू चाहे वही हम हमारे जीवन में कर सके प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।